बोलो, एनी डाउट इन द पेपर्स? पेपर्स में कोई डाउट्स फॉर द मिस्टेक्स एंड ऑल? मेजोरिटी तो वो नाम का गड़बड़ हो गया था, देखा नहीं किसी ने, कैपिटल में ऊपर नीचे हो गया था. ओके, फर्स्ट सम. आई थिंक द नेम्स वेर सोमनाथ एंड केदारनाथ. नाम आगे पीछे करने की वजह से गड़बड़ कर दी थी. बी अलर्ट ओवर देयर. कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंस रॉन्ग हो गया था. एंड सेकेंड कॉमन मिस्टेक आई फाउंड वाज इन कैश और बैंक. तो क्वेश्चन में पढ़ लेना, कैश दिया है कि बैंक दिया है. राइट द अकाउंट एज इट इज. एंड थर्ड कॉमन मिस्टेक वाज third common mistake was when you wrote in the third sum the distribution, creditors or bills payable were supposed to be paid off in the capital, your liability ratio. We're supposed to pay them off in liability ratio, but some people have done preference wrong or ratio calculation wrong, so there they have lost marks. Creditor or bills payable were supposed to be paid off in liability ratio. दैट लाइबिलिटी रेशियो में गड़बड़ कर दी थी कैलकुलेशन में, थर्ड सम में. दैट वाज द कॉमन मिस्टेक, सो रिमेंबर दैट. ओके, दिस सैटरडे फुल पोर्शन टेस्ट यू आर हैविंग. Okay, now tell me the timing. All of you are comfortable with evening time from 6 to 8:15. It will be 2 hour 15-minute test. Big test it is, 80 mark test it is. 2 hour 15 minutes to 2 hour 30 minutes max जा सकता है. तो 6 o'clock to 8:30 तक सैटरडे इवनिंग सबको जम रहा है. बिग टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट. 6 chapters with objectives. बोलो, मितिशा, यश, साक्षी, क्रिश, पार्श्व, जैनम, वृष्टि, जूही. और if you fine with the timing 6 to 8:15, 8:30, फिर मेरे को बहाना मत देना मेरे को ये क्लास है वो क्लास है इसका क्लैश हो रहा है. All of you have to write it at the same time. That's why I'm asking you in advance. 6 to 8:15 in the evening, Saturday. ठीक है? So we keep it final. Pattern आपको मिल चुका है. 80 mark paper it is. All questions are compulsory, including the objectives. Objectives will also have bills of exchange का pro formas. Okay? So prepare properly. And NPO नहीं होगा टेस्ट में. Okay? NPO की टेस्ट I'll be taking separately. So let's continue with sum number 22 where we left in the last lecture. Just sharing the screen. Sum number 22. Okay, in the books of Indian Hospital Pune. Now it's a hospital. In the books of Indian Hospital Pune. Okay. Income and expenditure. Current year is 11-12. You can see the receipt payment account. Okay. The current year is 2011-12.
2011-12 is the current year, and last year was 10-11. Last year was 10-11. Okay. Balance sheet and income and expenditure account. Draw it up. 20 seconds sum. Keep the videos on. I think we have already discussed the problem in the previous lecture. I'll continue from there. Okay. Now, start with always the payment part. Start with the payment part. Salaries. Okay, dots वगैरह सब दिया हुआ है आपने. Salaries पे बताओ कोई dot था? Salaries, please check. Do you have any dot on salaries? Outstanding. Okay. Which outstanding salary we are having? Last year outstanding or current year outstanding? Please check in the problem. Did you have last year's outstanding salary or current year outstanding salary? How will you find out whether it is last year's outstanding or current year's outstanding? How do you determine that? अगर ऊपर दिया है तो लास्ट ईयर, नीचे दिया है तो करंट ईयर. एब्सोल्युटली. अगर ऊपर वाले बैलेंस शीट में दिख रहा है मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और अगर नीचे एडजस्टमेंट में दिख रहा है मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है आपको थर्ड पॉइंट में, तो क्या करना है, इसको प्लस कर देना है. सो प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर, that is 6,000. So it becomes 61,000. Current year का incurred expense is 61. Next, medicines. So two medicines इतना हमने पे किया हुआ है. 26,000 is what we have paid. Now please check, do you have any information about medicines? Any adjustment on medicines? Any dot? Check properly. Yes sir, last year unpaid. Last year unpaid. Can you see that? Last year unpaid 3,000 in the last year's liability. ये साल आपने पैसे इतने दिए हैं, रोकड़ा इतना दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका पूरा का पूरा एक्सपेंस ये साल का 26 ही हो. उधर ऊपर आपको दिख रहा है आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 3,000. तो क्या करना है आपको, वो 3,000 इस मेडिसिन में प्लस करना है कि माइनस करना है? बोलो, what are we supposed to do? Plus or minus last year's outstanding? What are we supposed to do? माइनस. क्यों माइनस करना है? क्यों माइनस करना है? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है. आपने जो 26,000 पे किया हुआ है वो 26 थोड़ी पूरा का पूरा ये साल का होगा. उस 26 के अंदर लास्ट ईयर का 3,000 पड़ा होगा ना. आपका एक्सपेंस का चक्कर ऐसे ही चलेगा, पहले लास्ट ईयर का पे करोगे, फिर करंट ईयर का पे करोगे, फिर नेक्स्ट ईयर का पे करोगे. ठीक है, ये तो पेमेंट दिख रही है. 26,000 इज नॉट एक्सपेंस, 26,000 इज पेमेंट. पेमेंट सेम एक्सपेंस होना जरूरी नहीं है, थोड़ा अगला पिछला भी हो सकता है उसमें. तो इसमें 3,000 लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है, तो वो हम लोग माइनस कर देंगे. तो लेस आउटस्टैंडिंग मेडिसिन्स ऑफ लास्ट ईयर, या फिर आप लिख सकते हो फॉर द ईयर 10-11, that was 3,000. सर ऐसे शॉर्टकट लिखेंगे LY तो चलेगा? LYCY चलेगा, it's not wrong, but better presentation always write the years. सर मतलब ये साल का एक्सपेंस 23,000 है ना? Yes, ये साल का एक्सपेंस 23. ये जो आउटर कॉलम में दिखता है ये सब करंट ईयर का एक्सपेंस है, इनकर्ड एक्सपेंस है. ठीक है, आउटर कॉलम वाला सब करंट ईयर का एक्सपेंस है. इक्विपमेंट परचेस्ड. अभी इक्विपमेंट इज एन एसेट. ओके, एक मंत्र याद रख लो एसेट का. एसेट जब भी दिख जाए, whenever you come across any fixed asset, okay, how to tackle that fixed asset?
Bring that fixed asset from last year. लास्ट ईयर चेक करो वो फिक्स्ड एसेट है कि नहीं. उस फिक्स्ड एसेट को लेके आओ करंट ईयर में और उसमें 3 एडजस्टमेंट करने हैं. एसपीडी, स्पीड बताया था आपको. एसपीडी का फुल फॉर्म याद है किसी को? एसपीडी क्या क्या एडजस्टमेंट पॉसिबल है फिक्स्ड एसेट? Sale, Purchase, purchase, depreciation. सेल, परचेज, डेप्रीसिएशन. सेल, डेप्रीसिएशन, परचेज नहीं, एसडीपी नहीं, एसपीडी. ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. ये क्यों ऑर्डर इंपॉर्टेंट है? बिकॉज in NPO और in final accounts we assume that कि अगर कुछ सेल और परचेज की डेट नहीं दी है तो we assume that it is happening on the first date of the year. तो वही assumption है आपका फाइनल अकाउंट्स में भी. आपको याद होगा पहले आप परचेज एडिशन सब करके बाद में डेप्रीसिएशन करते थे लास्ट डेट पे. तो यही फंडा यहाँ पर भी सेम अप्लीकेबल है कि कुछ सेल परचेज की डेट नहीं पता है तो अज्यूम करने का कि वो फर्स्ट डेट पे हो गया. तो जो सेल हुआ है वो भी फर्स्ट डेट पे हो गया है, जो परचेज हुआ है वो भी फर्स्ट डेट पे हो गया है, और पूरा साल जो भी बचा हुआ एसेट है आपने यूज किया है और उस पर डेप्रीसिएशन हम लोग चार्ज कर देंगे एट द गिवन रेट. ठीक है. तो सेल, परचेज और डेप्रीसिएशन ये ऑर्डर मेंटेन करना है आपको. अभी इक्विपमेंट आपका एसेट है तो प्लीज चेक एंड टेल मी इन द प्रीवियस ईयर एसेट डिड यू हैव एनी इक्विपमेंट? लास्ट ईयर एसेट में कोई इक्विपमेंट था कि नहीं था? प्लीज चेक कर लो सब लोग. दिख रहा है क्या इक्विपमेंट इन द लास्ट ईयर एसेट, लास्ट ईयर बैलेंस शीट? कैन यू सी दैट? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट इन द लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट? हाउ मच इट इज? कम ऑन आंसर. 60,000. 60,000 was the equipment in the last year asset. So bring it to this year. Last year का closing balance था, ये साल का opening balance बन जाएगा. तो 60,000 bring it to this year in the inner column. अभी इस पे चेक कर लेने का कुछ सेल है क्या, कुछ परचेज है क्या, कुछ डेप्रीसिएशन है क्या. अगर सेल और परचेज होगा ना तो वो रिसीट पेमेंट में दिख जाएगा, क्योंकि परचेज किया तो ऑब्वियसली पैसा दिया होगा, सेल किया है तो पैसा आया होगा, तो कैश बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपका. सिंपल सा लॉजिक है. तो अगर परचेज किया है तो पेमेंट साइड दिखेगा, सेल किया है तो रिसीट साइड दिखेगा. चेक कर लेना है आपको. तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है आपको रिसीट पेमेंट में इक्विपमेंट का पार्ट? डू यू सी एनी इक्विपमेंट इन द रिसीट पेमेंट अकाउंट? यू कैन सी इक्विपमेंट परचेज 10,000 दिखाई दिया आपको? Can you see equipment purchase 10,000 on the payment side? What does that indicate? Payment में दिखने का मतलब खरीदा है कि बेचा है? चलो ये बताओ. खरीदा है. खरीदा है. खरीदा है तो क्या करोगे? अच्छा सेल है क्या? कुछ सेल है क्या? रिसीट साइड भी चेक कर लो, कुछ सेल है क्या इक्विपमेंट का? डोंट हैव एनी सेल. ठीक है. तो खाली परचेज है तो वी आर सपोज टू ऐड दैट. सेल होता तो मैं पहले माइनस कर देता, वो तो है नहीं. तो खाली परचेज है तो इक्विपमेंट परचेज इसमें ऐड हो जाएगा आपका 10,000. अभी मैंने अजम्पशन बताया हुआ है आपको. अगर सेल परचेज के बारे में कुछ नहीं दिया है तो वी अज्यूम इट इज हैपनिंग ऑन विच डेट? वी अज्यूम इट इज हैपनिंग ऑन विच डेट? फर्स्ट डेट. फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर पे हो रहा है तो ये पहले ही डेट पे खरीद लिया है ना. तो डेप्रीसिएशन चार्ज करना है कुछ इक्विपमेंट पे. चेक कर. डू यू हैव टू चार्ज एनी डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट? How much depreciation are we supposed to charge? 15,000. 15,000 एडजस्टमेंट में दिख रहा है. अच्छा डेप्रीसिएशन कभी रिसीट पेमेंट में आ सकता है क्या? Is it possible? No, non-cash expense. Non-cash expenditure, never possible. So it will always be a part of adjustment. So you need to give two effects. One effect is less from equipment, 15,000. So outer column you will have 55,000. And second effect is expenditure, that will give it at the end. Okay, all of you got that? Equipment, the same rule is applicable for all fixed assets. All fixed assets, last year ka asset bring it to this year and then check for SPD. SPD stands for sale, purchase or depreciation. Tell me guys, where will you find out sale if there is any sale of asset? Where will you find that? रिसीट साइड. क्योंकि बेचा है तो पैसा आएगा तो रिसीट में दिखना चाहिए. और where will you find out purchase? Where will you find out purchase?
in the question, where will you find out purchase of asset in the question? Payment. पेमेंट साइड, क्योंकि खरीदा है तो पैसा दिया है कि नहीं? तो सिंपल सा लॉजिक है. और डेप्रिसिएशन तो एडजस्टमेंट में भी, एडजस्टमेंट में ही दिखेगा क्योंकि वो तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है. ओके. फिर नेक्स्ट देखो जनरल एक्सपेंस. जनरल एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं दिया है, कुछ डॉट नहीं है. जनरल एक्सपेंस आर सिंपली एक्सपेंडिचर. सो टू जनरल एक्सपेंस are how much? 4,300. Balance carried down, cash and bank. So closing balance of cash and bank. So cash is asset 7,700, current year asset, and bank closing इतना बच गया 15,500. ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग जाएगा, उसके बाद कुछ पैसे आए कुछ गए, तो क्लोजिंग में इतना कैश बचा हुआ है आपके पास बैलेंस शीट में. दैट इज द मीनिंग. इतना रोकड़ा एट हैंड है आपके पास. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. गॉट इट? इज दिस क्लियर? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी हम लोग ने यही किया हुआ है. डिसोल्यूशन में तो बंद कर दे. एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में याद है हम लोग कैश बैंक का ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग अकाउंट में लिखते थे, फिर रिसीट पेमेंट करके क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में. वो एक दिन की बैलेंस शीट है, ये एक साल की बैलेंस शीट है. लॉजिक वही है. जो पैसा आया वो ऐड करो, जो गया वो माइनस करो, एंड फाइनल क्लोजिंग बैलेंस इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट. ठीक है. अभी आगे पढ़ो क्या दिया हुआ है. ओपनिंग कैश इन एंड कैश एट बैंक. अब बताओ ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? कैश इन एंड कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस. लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस शीट में. तो अपने को बनाने की जरूरत है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट? नहीं, वो लोग ने दी हुई है. तो यू कैन जस्ट क्रॉस वेरीफाई द अमाउंट्स. Cash in hand is 3,000. Cash at bank is 6,000. Did you all find that in the opening balance sheet? Okay. So that was your opening balance. So we are not supposed to write that because they have given the two effect. One in the receipt payment, one in the opening balance sheet. It is already there. Then we go to subscription. Subscription. What is subscription for an NPO always? What is subscription for an NPO? It's an income, right? So I will write by subscription. The amount is 65,000. Is this 65,000 my income? Presently, current year earned income. Is this 65,000 entirely my income? Tell me. No. This 65,000 is a receipt. इतना रोकड़ा आया है, ठीक है. इतना रोकड़ा मिला है. जरूरी नहीं है कि करंट ईयर की इनकम हो. ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत जरूरी है गाइस. अगर आपने रोकड़े को ही इनकम बना दी ना, तो आप कैश सिस्टम में चले जाओगे. Whereas our accounts are maintained on accrual system. Our accounts are maintained on accrual system. Is that clear? We are not maintaining on cash system. We are maintaining on accrual system. Okay. Accrual system के लिए income part is very important. टैक्स भी आपको इनकम पे लगता है. रिमेंबर, रोकड़े पे नहीं लगता है. जो अर्नड इनकम है उस पे यू विल be having that tax component. Okay, just a minute. And the screen sharing has been stopped. I think screen sharing stop हो गया ना. दिखाई दे रही है screen? No. Wait, just a sec. So I'll just 1 minute. Just a second.
राइट डाउन इन द मीन टाइम, राइट डाउन सब्सक्रिप्शन 65,000, इनकम साइड पे लिख दो सब्सक्रिप्शन 65,000, इनर कॉलम। ओके, इनर कॉलम में क्यों लिखा है? बिकॉज दैट्स योर रिसीट, वो इनकम नहीं है, इसलिए मैंने इनर कॉलम में लिखा हुआ है 65,000। अभी उसके बाद में पढ़ो क्या दिया हुआ है, इंक्लूड्स 1,000 रुपीज रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर। व्हाट डज दैट इंडिकेट? इंक्लूड 1,000 रुपीज रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर का मतलब समझ में आ रहा है? इसका मीनिंग क्या हुआ? व्हाट डज दैट मीन? 65,000 जो आपको रोकड़ा मिला है पूरा करंट ईयर का इनकम है कि उसमें लास्ट ईयर का भी कुछ पड़ा हुआ है? ईयर का 1000। लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है। कितना है लास्ट ईयर का? 1000। 1,000 रुपया लास्ट ईयर का है। फ्रॉम वेयर कैन यू चेक दैट 1,000 रुपया ऑफ लास्ट ईयर? You will check this from the last year's asset, last year's balance sheet asset check करो, you will find 1,000 rupees. Can you see that? 1,000 rupees in your last year's balance sheet asset. Can you see that? Outstanding subscription. So outstanding subscription 1,000 दिखने का मतलब last year आपको 1,000 मिलना बाकी था। दिखा? तो वो 1,000 जो आपको लास्ट ईयर मिलना बाकी था वो कब मिला होगा? ये साल। ये साल मिला होगा। तो वो ये साल जो आपको रोकड़ा मिला है 65,000, उसके अंदर पड़ा हुआ है 1,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा ये सोचने का जरूरत है आपको। नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इज इट इंक्लूडेड इन दैट 65? यस और नो? Yes. Yes. It is included in that 65,000. Did you understand? कुछ नहीं दिया है ना तो एक्सपेंस और इनकम का साइकिल ऐसे ही चलता है। पहले आपको लास्ट ईयर का पैसा आएगा, फिर करंट ईयर और फिर नेक्स्ट ईयर। एक्सपेंस में आप पहले लास्ट ईयर का पैसा दोगे, फिर करंट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर। सो कीप दैट इन माइंड। सर ओके, क्या सर इसमें जो है लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो रिसीवेबल है कि रिसीव्ड इन एडवांस है? रिसीवेबल है। सोच के बताओ तुम्हें कहाँ दिख रहा है वो? एसेट साइड मतलब रिसीवेबल है। इनकम रिसीवेबल ही एसेट होती है ना। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है? लाइबिलिटी। तो फिर रिसीवेबल है वो, एसेट साइड दिख रहा है मतलब मिलना बाकी था। डिड यू गेट इट? तो 65,000 जो रोकड़ा मिला है उसके अंदर लास्ट ईयर का कितना था रिसीवेबल? हाउ मच वाज लास्ट ईयर का रिसीवेबल? 1,000। वो इंक्लूडेड रहेगा, ये साल आपको रिसीव मिला रहेगा। तो लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का, दैट इज 10/11 का 1,000। ओके, ये माइनस कर देना है, इसका हिस्सा नहीं है। डिड यू गेट इट? वृष्टि, कृषा, नियति, पार्श्व, ईशा, जूही, खुशी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू है मेरा, टाइम वेस्ट मत करवाओ बीच बीच में। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अनदर एडजस्टमेंट ऑन सब्सक्रिप्शन? व्हाट इज अनदर एडजस्टमेंट ऑन सब्सक्रिप्शन? ये साल का आउटस्टैंडिंग। ये साल का आउटस्टैंडिंग वो आपको कहाँ दिख रहा है? नीचे दिख रहा है इन द एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस ईयर 6,000। गॉट इट? ये कौन सा रिसीवेबल है? ये तो करंट ईयर का रिसीवेबल है। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ दिस सब्सक्रिप्शन? ऐड टू सब्सक्रिप्शन। ये मिला ही नहीं है, ये मिलना बाकी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कभी ऊपर दिख सकता है रिसीट पेमेंट में? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, कैन यू फाइंड इट अंडर करंट ईयर्स रिसीट एंड पेमेंट? इज इट पॉसिबल? No. Never. Why? Why? You can't find it under receipt or payment? पैसा नहीं मिला है ना। पैसा नहीं मिला है इसलिए तो उसको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग का मतलब ही यही है कि पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो ये नीचे ही दिखेगा एडजस्टमेंट में। अर्न, कमा लिया इनकम लेकिन मिलनी बाकी है। ठीक है, मुझे कोई ये साल खत्म हो गया और 2-3 स्टूडेंट की फीस आनी बाकी है 30,000 रुपीज, मुझे फीस आनी बाकी है 30,000 रुपीज। तो पैसे नहीं मिले लेकिन आई विल एड इट टू दिस ईयर इनकम, आई विल पे टैक्स ऑन दैट इनकम। व्हाई? बिकॉज इट इज अर्नड इनकम ऑफ दिस ईयर। इट इज अर्नड इनकम ऑफ दिस ईयर। पैसे भले ही नेक्स्ट ईयर मिलेंगे बट इनकम मेरी ये साल की बन जाएगी।
तो यही बोलते हैं इसको आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग इनकम इज 6,000. आई विल ऐड, सो व्हाट इज माय नेट अमाउंट? नेट अमाउंट इज 70,000. 70,000 is my earned income. My tax will be calculated on this income minus expense. जो भी net profit आएगा उस पे, okay, profits पे I will pay tax. Is this clear? Same thing is applicable to businesses. Same thing is applicable to NPOs. Then we go to the sale of furniture. Now read properly. Sale of furniture. Sale of furniture is again an asset. Whenever you come across asset, पूरा story साथ में खत्म करने का. What is the story and how to tackle it? First, go to the previous year and check. Did you have any furniture in the previous year? Previous year का furniture आपको कहाँ मिलेगा? Asset में. तो last year का furniture को लेके आओ पहले current year में. कोई भी asset हो fixed asset, same तरीके से आपको करना है. लास्ट ईयर का फर्नीचर पहले करंट ईयर में लेके आओ 35. क्यों लेके आया भैया? लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग. अभी इस पे 3 एडजस्टमेंट्स आर पॉसिबल. व्हाट आर दोस 3 एडजस्टमेंट्स? सेल, परचेज, डेप्रिसिएशन. सो चेक, डू यू हैव एनी सेल ऑफ फर्नीचर? यस. अभी सेल में मैंने आपको लास्ट लेक्चर भी बताया था, इफ यू रिमेम्बर. सेल में फर्नीचर में से क्या माइनस करना है, बुक वैल्यू या सेल वैल्यू? बुक वैल्यू. बुक वैल्यू याद है, बताया था. बुक वैल्यू. बुक वैल्यू क्या होता है? आपका एंट्री क्या है? आपका एंट्री है कैश लॉस टू फर्नीचर. कैश लॉस टू फर्नीचर. उधर जो 10 दिख रहा है ना, उसको सर्कल करने बोला था, इफ यू रिमेम्बर. 10 इज द सेल वैल्यू. इतने में बेचा है आपने. कितने का था? 15,000 का था. कितने में बेचा? 10 में बेचा. तो 5 का लॉस हो गया. तो फर्नीचर में क्या लिखते हो? अकाउंट बनाते वक्त क्रेडिट साइड लिखते हो ना, बाय कैश, बाय लॉस करते थे, याद है? 11th स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन, बाय कैश अकाउंट, बाय लॉस अकाउंट, बाय डेप्री अकाउंट. तो फर्नीचर इज क्रेडिटेड बाय 15,000. तो यहां से माइनस करना है आपको, सेल लिखना है और बीवी लिखना है. बीवी स्टैंड्स फॉर बुक वैल्यू. बीवी स्टैंड्स फॉर बुक वैल्यू ऑलवेज. तो लेस सेल 15,000 रुपया बुक वैल्यू यहां से माइनस करो. तो आपका फर्नीचर हो गया 20 का. अब मुझे बताओ, इसमें कोई परचेज है? फर्नीचर में कोई परचेज है? सेल में बुक वैल्यू क्यों माइनस किया, ये समझ में आ रहा है आपको? बुक वैल्यू मतलब कितने का था. अभी फर्नीचर कितने का था उतना ही माइनस करोगे ना. कितने में बेचा वो थोड़ी माइनस कर सकते हो. 1,000 रुपए का फर्नीचर 1 लाख रुपए में बेच दिया, तो बैलेंस शीट में तो 1,000 ही दिख रहा है. तो माइनस कितना करोगे? 1,000. लाख रुपया थोड़ी माइनस कर सकते हो 1,000. बाकी का 99,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा. आर यू गेटिंग दैट? दैट गोस टू, इन दिस केस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो एसेट व्हेनेवर यू आर सेलिंग, asset whenever you are selling, which value are you supposed to subtract from that asset? Sale value or book value? Book value. Book value. उधर जो 10,000 दिख रहा है वो क्या है? सेल वैल्यू. That's the sale value. उतने में बेचा है, वो रोकड़ा आया है आपको, वो सेल वैल्यू है. उसको सर्कल करना है, उसको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करना है. ठीक है? वो कैश अकाउंट में ही रिकॉर्ड होता है जो हो चुका है, और कहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. अगर बुक वैल्यू नीचे लिखा नहीं हो तो क्या करना है? तो बुक वैल्यू अगर का इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता बुक वैल्यू का, तो भी बताया था, याद है क्या करना है? अगर बुक वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो क्या अज्यूम करना है? जो सेल सेल वैल्यू वैल्यू है वो जो सेल वैल्यू है वो बुक वैल्यू है. जितने का था उतने में बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस. जर्नल में भी यही करते थे, याद है? सोल्ड फर्नीचर ऑफ 6,000 फॉर 5,000, तो 1,000 का लॉस. खाली सोल्ड फर्नीचर फॉर 6,000, तो कैश टू फर्नीचर 6,000. जितने का सेल वैल्यू है उतना ही बुक वैल्यू, नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो. अच्छा, मुझे बताओ, परचेज ऑफ फर्नीचर तो कहीं दिख रहा है पेमेंट साइड पे? परचेज ऑफ फर्नीचर, इसके बाद सेल तो किया हमने, परचेज दिख रहा है कुछ? बोलो, नहीं दिख रहा है? नो. डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे कुछ? प्लीज चेक. डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में ही होगा. प्लीज चेक, डू यू हैव एनी डेप्रिसिएशन? नो. So this itself is the outer column value. This itself is the outer column value 20,000. नीचे नीचे कुछ करने की जरूरत नहीं, एडजस्टमेंट कुछ है ही नहीं.
अच्छा, इधर खत्म नहीं होता है इसका एडजस्टमेंट। आपने सेल किया है ना, तो क्या हुआ है यहाँ पे दिख रहा है आपको? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस। लॉस हो रहा है। वेयर विल यू रिकॉर्ड? इनकम Expense. एक्सपेंस अकाउंट। Which side? Which side? Expenditure. To loss on sale of furniture. To loss on sale of furniture, 15,000 minus 10,000, that is 5,000. 15 minus 10, that is 5. Okay. So whenever there is sale, there are two things supposed to be recorded. देखो, instead of directly recording that 10,000, I've entered those things in two parts. 15,000 I deducted from asset, 5,000 I recorded as loss. तो 15 minus 5 नेट इफेक्ट मैंने 10 का ही दिया है, लेकिन दो हिस्सों में दिया है। तो सेल के वक्त ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉस होने वाला है। तो एसेट में से बुक वैल्यू माइनस करनी है, और लॉस है तो एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट है तो इनकम। ठीक है। सर अगर प्रॉफिट होगा तो फिर रिसीप्ट साइड में कैसे दिखेगा वो? रिसीट साइड में दिखेगा टू सेल ऑफ फर्नीचर। इन दिस एग्जांपल तुमको दिखेगा 18,000। टू सेल ऑफ फर्नीचर दिखेगा 18, तो 18 को तो इग्नोर करना है। बुक वैल्यू इस 15, तो एसेट में से 15 माइनस करो, और 3,000 का प्रॉफिट है, तो इनकम साइड प्रॉफिट दिखा। तो सर मतलब ये जो 10,000 आउटर कॉलम दिख रहा है वो कैश मिला है ना? वो कैश मिला है, उतना बेच के मिला है, वो सेल वैल्यू है, रिकॉर्ड हो चुका है ना? वो रिकॉर्ड हो चुका है। कैश अकाउंट दिख रहा है ना ऊपर, उसमें रिकॉर्ड हो चुका है। तो अपने को लॉस और सेल फर्नीचर में ही रिकॉर्ड करना बाकी था, तो वो हमने अभी कर दिया। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डोनेशंस रेवेन्यू। व्हाट डू यू मीन बाय रेवेन्यू? डोनेशंस रेवेन्यू का मतलब इनकम। इनकम बाय डोनेशंस। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, 22,000। देन लाइफ मेंबरशिप फीस। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ? कैपिटलाइज द अमाउंट ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस दिया हुआ है। सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू विद दैट? ऐड टू कैपिटल। तो इधर कैपिटल फंड लिख दो, कैपिटल फंड, इसमें ऐड लाइफ मेंबरशिप फीस, which is how much? 12,500। ठीक है, ये भी हो गया। तो रिसीट पेमेंट खत्म हो गया। अभी ऊपर का बैलेंस शीट पे जाओ। पहले बैलेंस शीट से चेक करो कुछ आइटम बाकी है कि नहीं। कैश बैंक ऑलरेडी लिखा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग, देखो लैंड एंड बिल्डिंग क्या करना है। लैंड एंड बिल्डिंग का लास्ट ईयर का एसेट था, किधर जाएगा? फिक्स्ड एसेट कहाँ जाएगा लास्ट ईयर का क्लोजिंग? कुछ करना है कि छोड़ देना है? लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख रुपए ये साल का एसेट, ये साल के एसेट में दिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑल फिक्स्ड एसेट्स विल बी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर। फिर उस पे 3 एडजस्टमेंट पॉसिबल है। सेल, परचेज, डेप्री। मुझे बताओ कुछ सेल परचेज है लैंड एंड बिल्डिंग का? इज देयर एनी सेल और परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग? नो। होता तो कहाँ दिख जाता? रिसीप्ट पेमेंट। कुछ नहीं दिख रहा है, ना सेल है ना परचेज है। डेप्री है क्या? प्लीज चेक। हाँ। हाँ है। लास्ट लाइन पे दिया हुआ है डेप्रीसिएशन। तो कितना डेप्रीसिएशन है? 10,000। 10,000। इसका मीनिंग क्या हुआ? लास्ट ईयर 4 लाख का था बिल्डिंग, कुछ खरीदा बेचा नहीं, वापरा खाली, तो 10,000 से डेप्रीशिएट हो गया। अभी ये हो गया 390 का, और डेप्री जाएगा तुम्हारे एक्सपेंस में। ओके। फिर जाते हैं हम लोग फर्नीचर पे। फर्नीचर पे कुछ बाकी है कि हो गया? हमने ऑलरेडी लिख दिया फर्नीचर। कैन यू सी दैट? फर्नीचर वापस लिखने की जरूरत नहीं है। आउट देन वी हैव इक्विपमेंट। इक्विपमेंट भी हमने लिखा हुआ है लास्ट ईयर का, करंट ईयर लेके आके सेल, परचेज, डेप्रीसिएशन। वी हैव ऑलरेडी डन दैट, सो नो नीड टू राइट इट अगेन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बोलो, लास्ट ईयर का 1000 आउटस्टैंडिंग, क्या करना था उसको? एक तो लास्ट ईयर एसेट में था, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, एंड व्हाट वाज द सेकंड इफेक्ट? माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ये भी हमने कर दिया है, तो वापस करने की जरूरत नहीं है। Come to cash in fund. Cash in fund, that is capital fund. Capital fund is 5,02,000. Last year का closing becomes this year का opening.
लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग कैपिटल फंड. इसमें हम लोग सरप्लस वगैरह ऐड करके ये साल का क्लोजिंग ढूंढेंगे. ये साल का क्लोजिंग बनेगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग एंड द साइकिल विल कंटिन्यू. मेडिसिन बिल अनपेड, कौन सा आउटस्टैंडिंग बिल था वो? करंट ईयर की लास्ट ईयर? लास्ट ईयर. तो क्या करना था उसका? दो इफेक्ट. एक तो लास्ट ईयर का लायबिलिटी में दिख रहा था, और व्हाट वाज द सेकंड इफेक्ट? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग मेडिसिन क्या करना था अपने को? ये रहा, माइनस करना था. हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो दिख रहा है यहाँ पे मेडिसिन में, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. इफेक्ट हैज बीन गिवन. तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के सब एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए हैं. कम टू द करंट ईयर एडजस्टमेंट नाउ. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000. करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 6000. वन इफेक्ट इज हियर, add to subscription income side. What is the second effect of this, guys? What is the second effect of current year's outstanding subscription? Asset of this year. ये बाकी है, ये दे दो अभी. Outstanding subscription 6000. कौन सा है ये? करंट ईयर है. 11-12. Then we have capitalized the amount of life membership fees. We have already done that. Sakshi Doshi. Outstanding salaries are 6000. What are the two effects of outstanding salaries? Current year outstanding का दो effect क्या होगा? सर ऐड करने का. ऐड तो कर लिया है. एंड लायबिलिटीज. सेकेंड इफेक्ट देना बाकी था. आउटस्टैंडिंग सैलरी 6000 तो लायबिलिटीज. ओके. एंड डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट. वन इफेक्ट हैज बीन डन, लेस फ्रॉम रिस्पेक्ट. ये करंट ईयर का डेप्री है. करंट ईयर जो यूज किया उसका डेप्रीसिएशन. ओके. लास्ट ईयर पे कभी कोई डेप्रीसिएशन आएगा गाइस? बताओ मुझे. विल यू चार्ज एनी डेप्रीसिएशन इन द लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट? नो. व्हाई? वो पहले से हो गया होगा. फाइनल अमाउंट को माइनस करके फाइनल अमाउंट दिया है अपने को. लास्ट ईयर का क्लोजिंग वैल्यूज है वहां पे. ठीक है. ये साल के वेरी बिगिनिंग के वैल्यूज दिए हुए आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स. लास्ट ईयर पे कोई डेप्री वेप्री आने वाला नहीं है. करंट ईयर यूज किया उसका डेप्री है, याद रखना. लेस फ्रॉम एसेट किया हुआ है हमने. सेकंड इफेक्ट दे दो, दैट इज एक्सपेंडिचर टू डेप्रीसिएशन. On land and building it is 10,000, and on equipments it is 15,000. So what's the total amount? That's 25,000. And that's it. You calculate your surplus or deficit. What is the total? 118,300. 118,333. 118,333. डेफिसिट है कि सरप्लस? डेफिसिट कितने का? 26,300. 26,300 बाय डेफिसिट. और ब्रैकेट में लिखने का क्या? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम. और यही डेफिसिट इधर से माइनस कर देना है. इतना आपका कैपिटल फंड कम हो जाएगा. और कितना आ रहा है? 488,200. 488,200. जैसे प्रॉफिट लॉस ओनर को बिलोंग करता था, सरप्लस डेफिसिट भी ओनर्स को बिलोंग करता है, मेंबर्स को बिलोंग करता है. एंड टैलीज ऑन 494,200. प्लीज चेक. 494,200 पे टैली होना चाहिए दोनों साइड. 494,200. ड्रॉ फॉर द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम इज सम नंबर 19. Sum number 19. Okay, 19th problem. Young Sports Club Dadar. Take out sum number 19. Young Sports Club Dadar. Draw fast. ये कंसेप्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. कंपनीज के रिलेटेड जो कंसेप्ट है, ये कंपनीज के परव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसीट, पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ओके. आगे जाके आप लोग कंपनीज के साथ ही डील करने वाले हो, वेदर यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स और वेदर यू आर स्टार्टिंग योर ओन प्रैक्टिस एज अ सीए एंड ऑल, और यू आर डूइंग एमबीए इन फाइनेंस. आपको कंपनीज के साथ ही डील करना है. उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कंपनीज क्या करती हैं? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा बता देती है. प्रॉफिट एंड लॉस, रेवेन्यू बहुत अच्छा बताएंगी,
बट कैश जनरेटेड बहुत गंदा हो सकता है। ओके, क्योंकि कैसा होता है, आपने क्रेडिट सेल किया तो सेल्स एज एन इनकम दिख जाएगी, पैसा नहीं आएगा, पैसा डेटर्स में दिख रहा होगा। तो काफी कंपनी ऐसा झोल करती है, बुक्स में क्रेडिट सेल दिखा देंगी तो इनकम तो बढ़ गई, सेल्स दिख गया इसलिए इनकम बढ़ गई, प्रॉफिट्स बढ़ गए, लेकिन पैसे नहीं आए, वो अल्टीमेटली बैड डेट्स हो जाएंगे उसके। वो ऐसा बोलेगी कि डेटर ने बाद में पैसे नहीं दिए, तो इन्वेस्टर्स तो उल्लू बन गए। उन्होंने देखा रेवेन्यू स्टेटमेंट में प्रॉफिट अच्छा है, कंपनीज में पैसा डालो। बैंक ने सोचा रेवेन्यू स्टेटमेंट में प्रॉफिट अच्छे हैं, कंपनी को लोन दो। ओके, सेम थिंग हैपेंड विथ DHFL IIFL स्कैम। इनका PNL बहुत अच्छा था, लोन्स बहुत मिल गए, फिर पता चला कि यार बोपाड़ा कैश तो आ ही नहीं रहा है, खाली डेटर 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 दिख रहा है आपको बैलेंस शीट एसेट साइड। तो कैश जनरेटेड ये दिखना इंपॉर्टेंट है आपके इनकम्स के साथ। तो मतलब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड रिसीट। अभी यहाँ पे हम लोग वही देख रहे हैं, जरूरी नहीं है जितना रिसीट है वो इनकम है या जितना इनकम है वो रिसीट है। ओके, तो जो कैश में मिला है वो इनकम नहीं है, अक्रूड होता है वो इनकम होता है। सामने हम लोग कैश जनरेटेड भी देखते हैं कि ये इनकम कैश में आई है कि नहीं आई है, या आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम लोग बनाते हैं, you'll learn it in the inter CA inter and TY BAF BMS if you are doing that cash flow statement. Sum number 18, 18th sum in the books of sum number 19, sorry 18 तो किया है हमने। Sum number 19 in the books of Young Sports Club Dadar, in the books of Young Sports Club Dadar। इसी का जूम में इश्यू हो रहा है क्या अभी लास्ट 1-2 दिन से जूम ऐप में? सर अपडेट आया था शायद से। अपडेट करोगे तो होगा, वरना फिर प्रॉब्लम्स आता है। हाँ, अभी 1-2 दिन पहले ही आया था क्या? हाँ हाँ, ऑटो अपडेट होता है ना, वो तो नहीं होता। वो तो आपने सेटिंग रखा होगा तो होगा। ऑटो अपडेट होता है, फोन में करना। हाँ, देखते हैं चलो। मेरा लास्ट लेक्चर यही हुआ था, निकल गई थी खुद। कौन? भूमि भूमि परमार। चलो देखो, चेक करते जाओ सम नंबर 19। ओके, फटाफट मार्क करते जाओ सब लोग। पेमेंट साइड से शुरू करना है। क्रिकेट टूर्नामेंट, चेक वेदर यू हैव एनी क्रिकेट टूर्नामेंट फंड। क्रिकेट टूर्नामेंट फंड दिया है ऐसा कुछ? हाँ, क्रिकेट टूर्नामेंट फंड दिख रहा है आपको? फंड नहीं दिया सर। नहीं सर। फंड कहाँ दिया है? नहीं है। रिसीट फ्रॉम क्रिकेट टूर्नामेंट, इसका मतलब क्या है? ये नॉन रिकरिंग है कि रिकरिंग है? रिकरिंग है। रिकरिंग है। रिकरिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो कहाँ जाएगा रिसीट्स, कहाँ जाएगा और पेमेंट कहाँ जाएगा? रिसीट एक्सपेंस में पेमेंट, रिसीट इनकम में पेमेंट एक्सपेंस में। रिसीट इनकम में और पेमेंट एक्सपेंस में। इज दैट क्लियर? फंड होता तो लायबिलिटी और एक्सपेंस वहीं से माइनस, यहाँ पे तो रिसीट इनकम और पेमेंट एक्सपेंस। सो क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सपेंस रिकरिंग है तो एक्सपेंस में डाल दो,
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ सर जाएगा? वो जो रिसिप्ट में दिया है वो हर साल मिलता है ना हमको? वो हर साल मिलता है, यस, हर साल मिलता है, इसलिए इनकम में डाल रहा है ना। कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, फ्लक्चुएट नहीं होगा आपका सरप्लस डेफिसिट। तो रिसीट वाला हर साल वाला है, रिसीट वाला इनकम, एक्सपेंस वाला एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज व्हाट? एक्सपेंस। सैलरीज एंड ऑनरेरियम इज एक्सपेंस। ऑनरेरियम का मतलब क्या होता है? ऑनरेरियम का मतलब सैलरी के जैसा ही होता है, बट मंथली बेसिस पे नहीं होता है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आपको गेस्ट लेक्चर देने आ रहा है, या कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर विजिट करने आ रहा है, उसको आप देते हो ऑनरेरियम, ओके, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। फीस के जैसा आप देते हो फॉर सम स्पेशल गुड नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, जो आपका नॉलेज शेयर करने के लिए या कुछ हेल्प करने के लिए आता है ऑर्गेनाइजेशन में। रिपेयर्स टू बिल्डिंग इज एक्सपेंस। रिपेयर्स इज एक्सपेंस। हाँ, बहुत फालतू मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, रिपेयर को कभी बिल्डिंग में ऐड कर देंगे, कभी फंड से माइनस कर देंगे। रिपेयर हमेशा एक्सपेंस रहेगा, रेकरिंग है, हर साल होता है रिपेयर मेंटेनेंस, ठीक है। रिपेयर इज एक्सपेंस। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स आर आल्सो एक्सपेंस। न्यूज़पेपर वाले का खर्चा, सब्सक्रिप्शन टू न्यूज़पेपर, वो है वो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आर एक्सपेंस। इंश्योरेंस मतलब प्रीमियम, एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट्स किधर जाएंगे? Assets. Assets. Investments will go to assets. Then cash in and cash at bank are asset, current year closing balance. Opening cash in and cash at bank किधर जाएंगे? Opening cash in Last and year cash at balance bank, last sheet. year balance sheet asset. Subscriptions कहाँ जाएंगे? Where you will write subscriptions? Income. Income. Then we have entrance fees, revenue दिया हुआ है यहाँ पे। Entrance fees revenue का मतलब Income. income. Receipts from cricket tournament कहाँ जाएगा? Income. एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट कहाँ जाएगा? इनकम। बराबर है? ये रिसीट पेमेंट क्लियर है सबको? अब गो टू द एसेट्स, लास्ट ईयर बैलेंस शीट से इंफॉर्मेशन चेक करो। बिल्डिंग, वेर यू विल राइट बिल्डिंग? लास्ट ईयर का बिल्डिंग किधर टपकेगा? बोलो बोलो बोलो। Asset. एसेट। फर्नीचर लास्ट ईयर का किधर आएगा? Asset. करंट ईयर एसेट। एंट्रेंस फीस रिसीवेबल, ये कौन सा रिसीवेबल है? Last year. लास्ट ईयर का रिसीवेबल है। तो क्या लॉजिक यूज करने का? जो आपको ये साल एंट्रेंस फीस रिसीव किया है आपने, रिसीट साइड दिख रहा है 4,000 रुपए, इसमें कौन सा एंट्रेंस फीस पड़ा होगा? Last year का लास्ट ईयर का 200 200 पड़ा होगा, तो वो क्या करना है? प्लस की माइनस? Minus. माइनस करना है। सबको समझ आया ये बात? हेलो। आउटस्टैंडिंग इनकम थी लास्ट ईयर की, तो पैसे आपको ये साल मिलेंगे, तो ये साल की इनकम नहीं है, इसलिए ये साल के मिले हुए पैसों में से उसको माइनस करके इनकम बनानी है आपको। तो इनकम कितनी है ये साल की? ओनली 3,800, दैट 200 वाज ऑफ लास्ट ईयर, सो रिमूव दैट। स्पोर्ट्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट दिख गया, मतलब इज इट एसेट और एक्सपेंस? इक्विपमेंट Asset. एसेट। मटेरियल होता ना खाली, तो हम लोग देखते हैं डेप्री सेल के बारे में। इक्विपमेंट चिपक गया, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, books, always asset. Okay, so equipments are always asset. So what do? Where you will show equipments? Where you will show equipments in the current year? Last year asset से किधर जाएगा? Answer fast, come on. Current year balance sheet asset. करंट ईयर एसेट। और फिर उस पे चेक करने का सेल, परचेज एंड डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एसेट है। कैश इन एंड कैश एट बैंक लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है। कैपिटल फंड लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सी आउटस्टैंडिंग है? लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। क्या करोगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग? Minus. लास्ट ईयर लायबिलिटी में तो दिख रहा है, अभी यहाँ पे क्या करना है? इनकम एक्सपेंस Minus. माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? ये साल जो पे किया होगा उसके अंदर इंक्लूडेड होगा, तो हटा दो। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग भी सेम करना है, क्या करना है? प्लस करना है, माइनस करना है? माइनस करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी दिख रहा है आपको 23,300। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिख जाता है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस एंड डेफिसिट अलग दिखा रहा है। नॉर्मली आप क्या करते हो? जो भी सरप्लस डेफिसिट होता है उसको व्हाट डू यू डू? सरप्लस Capital fund में add. टू कैपिटल कैपिटल फंड, और डेफिसिट होता है तो Minus from capital fund.
तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करने चाह रहा है, ये चाह रहा है कि इसका कैपिटल फंड अलग दिखे, मतलब जो मेंबरशिप फीस एंट्रेंस फीस से बना हुआ कैपिटल फंड है वो अलग दिखे, और जो हर साल उसने सरप्लस डेफिसिट कमाया वो अलग दिखे। तो इंफॉर्मेशन के लिए इसने अलग अलग कर दिया है, तो आपको भी अलग अलग दिखाने हैं। तरीका वही है, लास्ट ईयर का कैपिटल फंड ये साल, लास्ट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये साल लायबिलिटी, लेकिन ध्यान क्या रखना है, when you calculate this your surplus or deficit at the end of the problem, what are you supposed to do with that? Will you add that surplus or deficit to your capital fund, or will you No. add it to your income and expenditure? Income and expenditure. Income and expenditure account. Okay. In fact, this is the practical presentation. अपने हाउसिंग सोसाइटी की कभी एनुअल रिपोर्ट चेक करना, आप लोग, आपके हर घर में मिलती है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। सो देयर वैल्यू चेक वो हमेशा दिखेगा आपको, सरप्लस डेफिसिट विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेपरेटली। ओके, बहुत रेयरली ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कैपिटल फंड में सब एडजस्ट कर लेता है। नॉर्मली कैपिटल फंड अलग होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अलग होता है। क्या मीनिंग है उस इनकम एंड एक्सपेंड, वो जो 23,300 दिख रहा है ना, वो क्या है, वो अभी तक का कमाया हुआ सरप्लस है। Did you get that? That 23,300 reflected in your income and expenditure account in the opening balance sheet is what? That is the surplus earned by the organization till date. Current year में whatever surplus you earn, what you will do? Will you add it to capital fund or income and expenditure? Tell me. Income expenditure. And what if you have deficit? Subtract it from income and expenditure. Is this clear? इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर इसके लिए सब अलग अलग। क्या क्या? हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिख रहा है ना अलग से, इसके लिए अलग अलग। नहीं दिया होता तो हर सम के जैसा नॉर्मली जैसे करते हो, लेकिन बाकी सब एडजस्टमेंट कैपिटल फंड पे करना है। एंट्रेंस फीस, डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, वो सब कैपिटल फंड पे। खाली सरप्लस और डेफिसिट के वक्त ध्यान रखना है, ठीक है? उसी के लिए वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया गया है। Then come to the current year's adjustment. Last year खत्म हुआ, नीचे आ जाओ। You are also given the following additional information. Subscriptions of the amount 800 were receivable as on 31st March 07. What is 31st March 07? बताओ। Current year. Current year receivable है, क्या करना है बताओ? Asset or add to it. Asset and add to subscription. फटाफट। Subscription 200 and entrance fees 300 were received in advance. Received in advance म्हणजे कौन सा received in advance है? कौन सा received in advance? Current year. Current year received in advance मतलब next year का पैसा अब भी आ गया, तो क्या करने का? Minus. And second effect? Liability. All of you understood? Then next one, outstanding expenses were salaries and honorarium. कौन सा outstanding है ये? current year, करंट ईयर का एक्सपेंस है, बिलोंग करता है, क्या करोगे? ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज। इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग, क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सपेंस, सब कुछ आउटस्टैंडिंग है, क्या करना है? सेम, ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड लायबिलिटी। अभी प्रैक्टिकली इंश्योरेंस भी कभी आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता है, ओके? इंश्योरेंस प्रीपेड ही हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कभी नहीं हो सकता है। आप टाइम से अगर लेट हो गए तो आपकी पॉलिसी कैंसिल हो जाती है, लैप्स हो जाएगी। तो आपको प्रीमियम खाली थियोरी के लिए आउटस्टैंडिंग तो कर लेना। तीनों आउटस्टैंडिंग इफेक्ट एक्सपेंस का इफेक्ट इज सेम, ऐड टू एक्सपेंस एंड लायबिलिटीज। इज दिस पार्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? सर इनकम एक्सपेंडिचर का क्या लिखा आप? क्या इनकम एक्सपेंडिचर की जगह क्या लिखने का मतलब? तब लायबिलिटी में जाएगा ना? हाँ, लायबिलिटी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो दिया है वही लिखने का, और उसमें सरप्लस ऐड करने का या डेफिसिट माइनस करने का। डॉट्स दे दो फटाफट। एडजस्टमेंट्स क्लियर है सबको करंट ईयर वाले? डॉट्स दे दो फटाफट। सब्सक्रिप्शन हाउ मेनी डॉट्स? 1 2 3 3 डॉट है सब्सक्रिप्शन पे। समझा क्यों? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का प्री रिसीव्ड। एंट्रेंस फीस 2 डॉट्स, सॉरी सब्सक्रिप्शन 3 डॉट्स, एंट्रेंस फीस 2 डॉट्स। सब्सक्रिप्शन में 3 क्यों? तुम बोलो। एक उसका रिसीवेबल अमाउंट, एक उसका रिसीव्ड इन एडवांस।
और लास्ट ईयर का लास्ट ईयर का रिसीवेबल सर ऊपर पर वाले वो बैलेंस। और एडजस्टमेंट वाला तो सेम है ना? सेम ही है सर। कैसा सेम हुआ भाई? अच्छा हाँ समझा सर, वो ये तो करंट लास्ट ईयर का रिसीवेबल ये साल मिला है तो वो माइनस करना है, और नीचे जो एडजस्टमेंट में वो करंट ईयर का रिसीवेबल है, दिख रहा है? एडजस्टमेंट में अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो सब करंट ईयर के एडजस्टमेंट है, नीचे नीचे जो है ना वो सब करंट ईयर के हैं। अगर लास्ट ईयर के हुए ना तो दे विल स्पेसिफाई ओवर देयर कि लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है। समझ में आई बात? नीचे वाले एडजस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया तो सब करंट ईयर का मसाला है, वो नीचे वाला नॉर्मल मसाला फाइनल अकाउंट्स का 1000 बार किया ना जो आपने, वो ओपनिंग वाले जो बैलेंस शीट से मिल रहे हैं वो लास्ट ईयर के एडजस्टमेंट्स हैं। डिड यू गेट इट देवीसी? So last year's adjustments outstanding subscription were how much? 800 rupees. Okay, last year asset and less from subscription. Did you get that? Current year वाला current year अलग से नीचे दिया हुआ है 07. So 3 dots on subscription, 2 dots on entrance fees. Salaries salaries पे कितना है? Salaries 2 dots, 2 dots on salaries. 1 dot on insurance, 1 dot on cricket tournament expense, 1 on insurance, 1 on cricket tournament expense, 1 on printing and stationery पे क्यों printing and stationery पे 1 dot? आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का चलो I want you all to try this sum. मैं साथ में कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अभी भी नहीं जम रहा है तो साथ में करो, नहीं तो ट्राई करो। ओके चलो, क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सपेंस जिसको आता है दे कैन ट्राई टू cricket टूर्नामेंट एक्सपेंस। इनर कॉलम है, कितना पे किया है? 16460 इतना पे किया है, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस में डॉट है। क्या करना है? क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सपेंस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, नीचे दिया है ना वो करंट ईयर, नीचे दिया वो करंट ईयर, ऊपर दिया वो लास्ट ईयर। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है? तो अगर कुछ नहीं दिया है नीचे एडजस्टमेंट में तो सब करंट ईयर का है, लास्ट ईयर का है तो दे विल स्पेसिफाई क्लियरली। तो एड आउटस्टैंडिंग क्रिकेट एक्सपेंस, करंट ईयर वाला कितना है? 250। तो ये हो जाएगा आपका 16,710। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इस पे लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्या करना है बताओ? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी माइनस करना है 860 में से, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग। लॉजिक क्या भैया? पैसे दिए हैं 860, इसमें 300 रुपए लास्ट ईयर के हैं, 06 के हैं, तो करंट ईयर का एक्सपेंस कितना हुआ? 560 ही हुआ। करंट ईयर का एक्सपेंस 560 ही है, इसका मतलब पे आपने 860 किया, उसमें 300 लास्ट ईयर का है। समझ में आई बात? सैलरीज एंड ऑनरेरियम पे 2 डॉट है, सैलरीज ऑनरेरियम पे देयर आर 2 डॉट्स। व्हाट आर द 2 डॉट्स ऑन सैलरीज ऑनरेरियम? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग भी है और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग भी है। तो करंट ईयर नीचे मिलेगा, एड आउटस्टैंडिंग सैलरीज 07। सर ऑनरेरियम का मतलब क्या है? ऑनरेरियम का मतलब है कि विजिटिंग फैकल्टी होता है, विजिटिंग डॉक्टर होता है, कोई स्पेशल नॉलेज वाला पर्सन हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम उसको परमानेंट मंथली सैलरी नहीं देते हैं, फीस के फॉर्म में ऑनरेरियम देते हैं। इट्स लाइक अ फीस। ओके, सम प्रेस्टिजियस पीपल को जो हम पेमेंट देते हैं उसको ऑनरेरियम, प्रोफेशनल फीस, सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल फीस के जैसा। ओके, बट थोड़ा सा अलग है। फीस इज अगेन वो रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, उसको फीस देते हैं, बट ओकेजनली आ रहा है, कम आ रहा है, उसको ऑनरेरियम। या सर लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड रहता है वो तो करंट ईयर के एसेट लायबिलिटी मतलब जिधर दिया उधर ही दिखता है ना करंट ईयर में। अगर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में रहता है तो ये साल के हमें लायबिलिटी में दिखेगा ना वो। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये साल का लायबिलिटी में नहीं दिखेगा, एक्सपेंस में से माइनस होएगा। हाँ बट दूसरा इफेक्ट इफेक्ट तो लास्ट ईयर लायबिलिटी ना,
दिया हुआ है ना, दिख तो रहा है। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर दिया तो है सामने लाइबिलिटी में। हाँ सर, हाँ। हाँ, और दूसरा इफेक्ट हम लोग दे रहे हैं एक्सपेंस में से माइनस करके, समझा? Salaries and honorarium 1600 plus outstanding of this year and minus outstanding salary of last year। अच्छा, मतलब तू ये पूछ रहा है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एसेट में दिख सकता है क्या एक्सपेंस? ऐसा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एसेट में तो नहीं दिख सकता, ऐसा पूछ रहा है? नहीं नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी, प्रीपेड एसेट। लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर लायबिलिटी एसेट, करंट ईयर का है तो करंट ईयर लायबिलिटी एसेट। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर माइनस हो जाएगा, इतना इंक्लूडेड है इसके अंदर 400 रुपया। तो इसका लॉजिक क्या हुआ समझो, 1600 रुपया आपने रोकड़ा पे किया है, उसके अंदर 400 जो है वो लास्ट ईयर का पे किया है, तो वो हटाओ। तो ये साल का कितना चुकाया? 1200। अब एक्चुअल सैलरी आपकी 1300 है, 1200 नहीं है 1300 है, तो 100 रुपया और देना बाकी है, तो वो हमने ऐड कर दी। आपको टोटल मिलेगा आउटर कॉलम 1300 ऑटोमेटिकली। ये साल की इनकर्ड एक्सपेंसेस 1300। अब जरा दिमाग लगाओ और बताओ, 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, ये जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी है 100, ये नेक्स्ट ईयर क्या करोगे आप? माइनस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर सैलरी। डिड यू गेट इट? करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो नेक्स्ट ईयर पे करोगे, तो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंस में से माइनस कर दो एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। ओके, देन सैलरी के बाद रिपेयर्स टू बिल्डिंग, दैट इज आल्सो। हाँ सर, अगर पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी माइनस किया और फिर किया तो कोई चलेगा? चलेगा, हाँ भाई चलेगा, कोई बात नहीं, माइनस प्लस ही है, उल्टा ऊपर नीचे हो गया चलेगा, बट लास्ट ईयर का माइनस करना और करंट ईयर का ऐड करना, बस वो ध्यान रखना। सर नीचे करो चलेगा। ये साल वो जो हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर दिखाए गए, तो अगर सरप्लस आया तो टू इनकम एक्सपेंडिचर लिखेगा? नहीं, सरप्लस वही लिखना है, टू सरप्लस या बाय डेफिसिट। तो बैलेंस शीट में उसमें सिर्फ ऐड करना है? बैलेंस शीट में खाली इनकम एक्सपेंडिचर में ऐड करना है, कैपिटल फंड में नहीं करना है। रिपेयर्स के बाद न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, that is 470. Advertisement expense, that is 300. And we have insurance. अभी इंश्योरेंस पे क्या एडजस्टमेंट है जरा पढ़ना। इंश्योरेंस 400 रुपए पे, इट इज करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग, सो यू ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस, नीचे दिया हुआ एडजस्टमेंट में 50 रुपीज, तो ये हो गया 450। ये कौन से साल को बिलोंग कर रहा है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग? ये साल को। अभी ये साल का आउटस्टैंडिंग नेक्स्ट ईयर क्या करोगे? माइनस कर दोगे, ये नेक्स्ट ईयर पे करोगे ना, उसमें से हटा दो तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस मिल जाएगा। फिर है इन्वेस्टमेंट। सर, जो सब्सक्रिप्शन का हमको रिसीव्ड इन एडवांस और रिसीवेबल दिया है, एक ही सेकंड मैं कर रहा हूँ, अभी सब्सक्रिप्शन पे ही पहुंच रहा हूँ, जस्ट 1 सेकंड। ये इन्वेस्टमेंट, ये कैश इन हैंड, ये सर इन्वेस्टमेंट में अगर इनकम सेट दिया होता कि इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हम लोग ऐड कर लेते थे। नो, दैट इज रिसीव्ड इनकम। ओके, रिसीवेबल इज एडेड, मिलना बाकी है वो ऐड होता है, मिल चुका है ना तो कैश टू इंटरेस्ट होता है एंट्री। तो कैश डेबिट रिसीट और इंटरेस्ट क्रेडिट, मतलब इंटरेस्ट में बाय कैश और टू P&L के जगह टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय इंटरेस्ट। ओके, देखो एक और बहुत सिंपल सा शॉर्टकट बता रहा हूं, सुन लो कान खोल के सब लोग। अगर कोई आइटम रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड पे, तो आइदर इट इज एन एक्सपेंस और इट इज एन एसेट। समझ में आ रही है बात? अगर रिसीट पेमेंट के पेमेंट साइड पे कुछ दिख रहा है तो या तो एक्सपेंस है या तो एसेट है। अगर कोई रिसीट साइड पे दिख रहा है तो वो क्या होगा? या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी।
शॉर्ट टर्म है तो इनकम, लॉन्ग टर्म है तो लाइबिलिटी। पेमेंट में है तो शॉर्ट टर्म है तो एक्सपेंस, लॉन्ग टर्म है तो एसेट। जैसे ट्रायल बैलेंस में करते थे, डेबिट्स में है तो एसेट या एक्सपेंस, क्रेडिट्स में है तो इनकम या लाइबिलिटी। सेम फंडा इधर है। पेमेंट साइड कोई आइटम है या तो एसेट है या तो एक्सपेंस है, रिसीट साइड पे कोई आइटम है या तो वो इनकम है या तो वो लाइबिलिटी। इज दिस क्लियर? तो ये थंब रूल कभी वायलेट नहीं होगा, ध्यान रखना आप लोग। नाउ वो इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट लायबिलिटी है ना? नहीं, कैसा लाइबिलिटी? इनकम। सर बैंक अकाउंट पे तो हम लोग देते हैं ना वो लोग को, तो लायबिलिटी हुआ ना वैसे। बैंक अकाउंट पे तू ब्याज देगा कि बैंक तेरे को ब्याज देगा? अरे बैंक चार्जेस रहता है ना। बैंक चार्जेस थोड़ी है, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट है। तू बैंक को ब्याज देता है कि बैंक तेरे को ब्याज देता है? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नहीं है वो। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज योर एक्सपेंस। ये इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट है, बैंक में पैसा पड़ा है ना, उसका ब्याज आया है। अरे भाई रिसीट में दिख रहा है ना, तो पैसा मिला है ना, तो मिला है तो कौन सा है? इनकम है वो, ब्याज मिला। सर इसमें कैपिटल डायरेक्ट आउटर कॉलम दिखेगा ना अभी? और कुछ ऐड नहीं करना है क्या? कैपिटलाइज तो आउटर कॉलम नहीं, कुछ नहीं। तो फिर आउटर कॉलम बराबर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर लायबिलिटी में आएगा ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर लायबिलिटी, यस, जस्ट बिलो कैपिटल। बता रहा हूं, देखो अभी ओपनिंग कैश बैंक लास्ट ईयर ऐसे चला गया। अभी सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दो जरा सब लोग। सब्सक्रिप्शन कैसा दिख रहा है? 3 एडजस्टमेंट है। ये रोकड़ा मिला है अपने को सब्सक्रिप्शन। कितना रोकड़ा मिला है? 18,000। 18,000 कैश आया, सब मेंबर आए, ओके, और 18,000 रोकड़ा देके चले गए। फिर मैं अभी छांट रहा हूं उसको। 18,000 में मेरे को पता चला कि लास्ट ईयर का 800 मिलना बाकी था, तो लास्ट ईयर का भी 800 इसी में पड़ा रहेगा, तो हटाओ। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर मतलब 06। ये 800 रुपया ये साल को बिलोंग नहीं करता है, हटाओ। देन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलना बाकी है। इनकम बिलोंग करती है लेकिन मिलनी बाकी है, तो ऐड कर दो। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर मतलब 07। कितना है रिसीवेबल? 800 रुपया। तो ये करंट ईयर की ऐड कर दी। और 200 रुपया क्या है? प्री रिसीव्ड है, मतलब कोई ये जो 18,000 मिला इसमें 200 रुपया नेक्स्ट ईयर का भी आ गया। नेक्स्ट ईयर का थोड़ी ये साल को बिलोंग करता है, वो तो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करेगा। तो इधर से हटा दो उसको। लेस प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर का अभी आ गया, उसको बोलते हैं प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर। तो 200 रुपया हटाया हमने, तो वी गेट 17,800 इन द आउटर कॉलम, दैट इज अर्न्ड इनकम। डिड यू अंडरस्टैंड सब्सक्रिप्शन पार्ट? हेत शाह को समझ में आ रहा है? Yes. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? एनी डाउट? यशवी पटेल को डाउट था? हाँ, अगर आप रिसीवेबल दिखा रहे हो करंट ईयर का और उसमें एडवांस भी दिखा रहे हो, तो फिर आप एडवांस को रिसीवेबल में कन्वर्ट क्यों नहीं कर देते? मतलब अगर हम लोग ये साल का ही नहीं दिया तो एडवांस का कैसे दे सकते हैं ना? यही मैं बोल रहा हूँ आपको, ये मेंबर्स होते हैं ना, तो अलग अलग मेंबर्स से अलग अलग हो रहा है। एक मेंबर ने एडवांस दिया है, दूसरे मेंबर का रिसीवेबल है, इसीलिए अलग अलग दिखा रहे हो। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना, तो मेंबर स्पेसिफिक है ये। तो किसी मेंबर का अगर एडवांस आया है तो एडवांस में दिखा रहे हो, किसी मेंबर का रिसीवेबल है तो रिसीवेबल अलग से दिखा रहे हो। तो अब पता चलेगा ना, डेटा अलग से मेंटेन होगा इसके लिए। सब्सक्रिप्शन में ये पॉसिबल है। सैलरी भी यहाँ पे आप ऐसे दिखा दो, किसी एम्प्लॉय को आपने एडवांस दे दिया, किसी एम्प्लॉय को पेएबल रखी है, उसमें भी हो सकता है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। ओके, तो थोड़ा डिटेल दिखाने के लिए हम लोग ये करते हैं, और कुछ नहीं। एंट्रेंस फीस, सो बाय एंट्रेंस फीस कितना मिला है तुमको? 4,000 मिला है रेवेन्यू। इस पे भी 2 डॉट है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस है 200 रुपया, ये माइनस करो, ये मिला होगा ये साल के अंदर। एंट्रेंस फीस हटाओ यहाँ से 06 का, 200 रुपया माइनस करो, एंड 07 का आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस यू एड 07 का आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस इज हाउ मच? अरे नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं है, प्री रिसीव्ड है। 07 का प्री रिसीव्ड है, तो लेस ही होगा वो प्री रिसीव्ड
entrance fees of 07, current year pre-received is 300. लास्ट इस ये जो 4000 रोकड़ा मिला है ना, इसमें 200 लास्ट ईयर का है, हटा दिया, और 300 नेक्स्ट ईयर का है, वो भी हटा दिया। ये साल का कितना है मिला हुआ? 3500, ये करंट ईयर का कमाया हुआ इनकम। गॉट इट? लास्ट ईयर का भी हटाओ, नेक्स्ट ईयर का भी हटाओ, खाली करंट ईयर का अर्न इनकम दिखाओ। अभी कुछ रिसीवेबल होता तो मैं ऐड करता, वो तो कुछ है नहीं। फिर क्या है? receipts from cricket tournament. So buy receipt from cricket tournament. इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 14,520 और इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इज इनकम। इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट इज इनकम 300। एक बार ये हो गया, फिर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक कर लेना है लास्ट ईयर के कोई एडजस्टमेंट्स बाकी तो नहीं। तो गो टू बिल्डिंग। बिल्डिंग कहाँ जाएगी? लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर एसेट से वेरी विल राइट बिल्डिंग। बिल्डिंग लास्ट ईयर एसेट से किधर जाएगा? करंट ईयर एसेट में जाएगा। डू यू हैव एनी सेल परचेज डेप्री ऑन बिल्डिंग? चेक। बिल्डिंग पे कुछ सेल परचेज डेप्री है? सेल परचेज होएगा तो रिसीट पेमेंट में दिख जाएगा, नहीं है। डेप्री होएगा तो एडजस्टमेंट में दिख जाएगा, वो भी नहीं है। तो लिख दो आउटर कॉलम वैसे का वैसा। बिल्डिंग पूरा साल वापरा तो भी डेप्रिशिएट नहीं हुआ, वेरी गुड। अंबुजा सीमेंट। देन फर्नीचर। फर्नीचर किधर जाएगा? लास्ट ईयर का करंट ईयर एसेट। पर ऐसे कैसे? थोड़ा बहुत तो डेप्रिशिएट होगा ना। अभी नहीं दिया है सम में तो क्या करें? तो पर ऐसे प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली होता है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होता है। यस। फर्नीचर लास्ट ईयर से करंट ईयर, बोलो कुछ सेल परचेज है फर्नीचर का? नहीं है। डेप्रीसिएशन भी नहीं है, तो लिख दो आउटर कॉलम 5000। आउटर कॉलम 5000। ये भी होता है डेप्रीशिएट, बट इधर नहीं हुआ, तो लिख दो ऐसे। एंट्रेंस फीस रिसीवेबल 200 रुपीज। क्या करना है अपने को? लास्ट ईयर एसेट तो दिया हुआ है। व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ दैट एंट्रेंस फीस रिसीवेबल लास्ट ईयर वाला? बोलो। ये दिख रहा है इधर माइनस किया है लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। हेलो, डिड यू ऑल गेट इट? आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फीस लास्ट ईयर एसेट और सब्ट्रैक्ट हो चुका है। सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल लास्ट ईयर एसेट सब्ट्रैक्ट हो चुका है। देन स्पोर्ट्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट लास्ट ईयर एसेट का ब्रिंग इट टू करंट ईयर एसेट। स्पोर्ट्स मटेरियल एंड इक्विपमेंट। कुछ सेल परचेज तो है नहीं तो इनका रिसीट पेमेंट में दिखता था क्वेश्चन में, और डेप्री भी नहीं है तो सेम वैल्यू। जनरली ये भी होता है डेप्रीशिएट, लेकिन नहीं हुआ भैया भगवान की कृपा से। देन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक लास्ट ईयर का क्लोजिंग बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग। रिसीट पेमेंट में दिख रहा है आपको, वापस मत लिखना। कैपिटल फंड लास्ट ईयर का क्लोजिंग कैपिटल फंड बिकम्स दिस ईयर का ओपनिंग कैपिटल फंड। कितना है? 30,000। इसको आउटर कॉलम में ही धकेल दो, क्योंकि आपको मालूम है सरप्लस डेफिसिट इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में डालना है आपको, ठीक है? तो आउटर कॉलम में धकेल दिया। देन आउटस्टैंडिंग सैलरीज, क्या करना था? लास्ट ईयर लाइबिलिटी एंड क्या करना था? सैलरी में से माइनस किया हुआ है क्या? देख लेने का एक बार। यस, हो चुका है। देन आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग भी लास्ट ईयर लाइबिलिटी एंड लेस फ्रॉम प्रिंटिंग। ये रहा लेस फ्रॉम प्रिंटिंग, कहाँ गया? ये रहा, दिख रहा है सबको? लेस फ्रॉम प्रिंटिंग एंड लेस फ्रॉम सैलरी लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग टेकन केयर ऑफ, टैकल्ड। एंड देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लास्ट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर ब्रिंग इट टू दिस ईयर ऑन द लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी में था, मतलब सरप्लस था अभी तक का 23,300। इसको मैं इनर कॉलम में दिखाऊंगा। क्यों? इसको क्यों इनर कॉलम में दिखाया? सरप्लस डेफिसिट बाकी है, सरप्लस डेफिसिट बाकी है, इसके लिए सिंपल। तो आपका लास्ट ईयर बैलेंस शीट हो गया। अभी जाओ करंट ईयर में, नीचे एडजस्टमेंट देखो करंट ईयर वाले क्या दिए। लास्ट ईयर बैलेंस शीट का फंडा क्लियर है सबको? बताओ बताओ बताओ। Yes. Any doubts in the last year items? Next, current year adjustment जो नीचे दिए हुए हैं फटाफट। Subscription for the current year were receivable. What were the two effects? Add to subscription कर दिया है क्या? Yes. Second effect is what? Current year
एसेट या करंट ईयर लायबिलिटी? करंट ईयर एसेट या करंट ईयर लायबिलिटी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलो। करंट ईयर एसेट या करंट ईयर लायबिलिटी? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एसेट। वो सब्सक्रिप्शन ऑफ 200 एंड एंट्रेंस फीस ऑफ 300 वर रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड है ना, तो सब्सक्रिप्शन में से माइनस और एंट्रेंस फीस में से भी माइनस, इस साल को बिलोंग नहीं करता है। सेकंड इफेक्ट लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या दिखाने का? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना था? 200 रुपया, एंड एंट्रेंस फीस रिसीव्ड इन एडवांस कितना था? 300 रुपया। कॉमन सेंस अप्लाई करो, अपना दिमाग वापरो सब लोग, और मुझे बताओ, 1 सेकंड स्क्रीन पे देखो सब लोग, ये जो प्री रिसीव्ड है करंट ईयर का, ये नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? एंट्रेंस फीस और सब्सक्रिप्शन 200-300, नेक्स्ट ईयर क्या करोगे? माइनस। कल्याण भोपाल माइनस ऐड, कुछ भी बोलने का, सोच के बोलो जरा। ये 200 और 300 जो यहाँ पे लायबिलिटी में दिख रहा है, ये नेक्स्ट ईयर इनकम में क्या करोगे आप? ऐड ही करोगे ना, ये नेक्स्ट ईयर का पैसा है, नेक्स्ट ईयर का पैसा अब भी मिला है तुमको, इसलिए तो माइनस किया, ये साल माइनस किया ना, तो नेक्स्ट ईयर क्या करने का? ऐड। नेक्स्ट ईयर की इनकम है ये। डिड यू गेट इट? तो करंट ईयर का प्री रिसीव्ड नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट ईयर का जो प्री रिसीव्ड है वो वापस माइनस हो जाएगा, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। जैसा ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस किया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड किया, दिख रहा है यहाँ पे। अभी करंट ईयर का ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये नेक्स्ट ईयर क्या करोगे? बताओ जरा मेरे को, 800 रुपया करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, नेक्स्ट ईयर क्या करोगे? माइनस। तो करंट ईयर का प्री रिसीव नेक्स्ट ईयर क्या करोगे? ऐड। लॉजिक बैठ रहा है? ये पैसे आपको नेक्स्ट ईयर के अब भी मिले हुए हैं, तो नेक्स्ट ईयर ऐड हो जाएंगे ना, नेक्स्ट ईयर की इनकम, इट विल बी एडेड टू नेक्स्ट ईयर्स इनकम। ओके, देन what do we have? Outstanding expenses. 3 outstanding expenses थे, इंश्योरेंस, सैलरी एंड क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सपेंस। ऐड हो चुका है इंश्योरेंस, सैलरी, क्रिकेट टूर्नामेंट एक्सपेंस। सेकंड इफेक्ट बाकी है तो दिखा दो। कहाँ दिखाओगे? तो करंट ईयर लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस 50, आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपया, and outstanding tournament expense 250। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, चलो बंधुओं, look at the screen 1 second, tell me, ये तीनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे आप? माइनस। पक्का माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है क्यों माइनस करेंगे? नेक्स्ट ईयर आप पे करोगे इनको, तो पेड एक्सपेंस, नेक्स्ट पेमेंट किया है, एक्सपेंस थोड़ी नेक्स्ट ईयर का। एक्सपेंस तो ये हटाओ, उसको माइनस करो, बस ये हो गया आपका कैलकुलेट सरप्लस डेफिसिट। बताओ मुझे, टोटल बताओ पहले क्या आ रहा है? What is the total? 36,120. 36,120 is the total. 36,120 is the total. Surplus or deficit? Surplus. How much? 15,830. 15,830. Excess of income over expenditure. Excess of income over expenditure. किस में ऐड करोगे सरप्लस? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसका बनाने का रीजन ही यही था, तो शो योर सरप्लस एंड डेफिसिट। कितना होता है ये? 39,130। कैपिटल में ऐड किया तो रॉन्ग देंगे? तो रॉन्ग देंगे, जरूर रॉन्ग देंगे, इज्जत से रॉन्ग देंगे, क्योंकि वो लोग ने इतनी मेहनत करके आपको अलग से दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों दिया है? इसीलिए दिया है कि सरप्लस डेफिसिट ऐड करो। बेचारे का एक ही काम है और उसको बेरोजगार कर दोगे आप, तो काट ही देंगे। 70,030। 70,030। 70,030। देख लो, चेक कर लो, ड्रॉ फॉर द नेक्स्ट सम फटाफट। सर मतलब ये इनकम और एक्सपेंडिचर खाली सरप्लस और डेफिसिट को मतलब प्लस माइनस के लिए ही बनाया है, दूसरा कुछ फायदा नहीं है? कुछ फायदा नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन।
कैपिटल फंड का ही हिस्सा था, तोड़ के अलग बता दिया। जैसे फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में हम लोग करते हैं ना, करंट को तोड़ के अलग दिखा देते हैं कैपिटल में से, वैसे इसमें कैपिटल फंड से इनकम एक्सपेंडिचर अलग करके दिखाया। ऑलराइट सर, डेफिसिट इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा नहीं आ सकता ना? आया तो फिर एसेट में चला जाएगा, वो नेगेटिव बैलेंस में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर एसेट साइड दिख जाएगा आपको अगर ज्यादा आया तो। ओके सर, इसमें ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है वो लोग ने, अगर सिर्फ करंट ईयर में होता वो, तो फिर हम लोग उसको एक्सपेंस लेते। खाली मटेरियल होता तो हाँ, इधर इक्विपमेंट साथ में है ना, इक्विपमेंट्स आर ऑलवेज एसेट, इक्विपमेंट्स आर ऑलवेज एसेट। मटेरियल है तो फिर सेल और डेप्री चेक करने का, अगर सेल और अगर डेप्री लास्ट ईयर में भी दिया है स्पोर्ट्स मटेरियल और ये ईयर में भी, तो फिर हम लोग एसेट में ऐड कर देंगे ना। एस मटेरियल के लिए दो चीज चेक करने का सम में, सेल और डेप्री। सेल और डेप्री है तो एसेट, अदरवाइज एक्सपेंस। समझ में आया? सेल एंड डेप्रीसिएशन है तो ही सर पर अगर लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट में दिया होता खाली स्पोर्ट्स मटेरियल तो वो ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है। सेल और डेप्री नहीं है तो वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। सर तो फिर करंट ईयर में भी वो एसेट्स में ही आएगा ना? नहीं, ओपनिंग स्टॉक क्या करते हो आप? क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हो, ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हो ना। ओपनिंग स्टॉक विल बी एडेड टू। ओपनिंग स्टॉक क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस है। लास्ट ईयर का प्रीपेड क्या करते हो? ऐड करते हो, एक्सपेंस में ऐड होगा, एसेट में नहीं दिखेगा। लास्ट सम नंबर 23, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम। सर लेक्चर फर्स्ट एसके सोमैया, यू कैन लीव, कम ऑन। बाकी लोग देखो सम नंबर 23 स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा सम करोगे? देखता हूँ, टाइम मिला तो पूरा करूंगा। कम टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, मार्क डाउन मेडिसिन्स। वेयर विल यू राइट मेडिसिन्स? एक्सपेंस। सर कौन सा सम बोला आपने? 23rd, जीवन दीप हॉस्पिटल पुणे। Medicines are expense, honorarium to doctors are expense, ambulance maintenance is expense, hospital equipment purchase. What is hospital equipment purchase? Assets. Assets. Furniture purchased? Asset. Assets. Fixed deposits? Asset. Assets. Balance carried down? Asset. Current year asset. Opening balance? कुछ नहीं। कुछ नहीं। कहाँ जाएगा? लास्ट ईयर एसेट। लास्ट ईयर एसेट। अभी क्वेश्चन में चेक करो, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। Do you have any opening balance sheet in the question? No. No. So in such a situation, आपको शायद ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़े, ओके? बट ओपनिंग बैलेंस शीट कब बनाना? ओपनिंग बनाने का रीजन क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का एक ही रीजन है, टू कैलकुलेट कैपिटल फंड। टू कैलकुलेट कैपिटल फंड। अगर आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है, अगर आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है कहीं पर, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। क्या आपको ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ है? चेक करो इंफॉर्मेशन। No. बराबर चेक करो। Yes. पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 पे दिया हुआ है, कैपिटल फंड ऑन 1st April 2012 वाज 4,32,000। हाउ डू यू गेट कैपिटल फंड गाइस? मैं आपको अगर एसेट की लिस्ट दूं और लायबिलिटी की लिस्ट दूं तो कैपिटल फंड कैसे मिलेगा आपको? एसेट माइनस लायबिलिटी। सीखा हुआ है आपने 11th स्टैंडर्ड। टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ लायबिलिटीज। तो एसेट्स माइनस बाकी लायबिलिटी कर दो तो कैपिटल फंड मिल जाएगा ना आपको। तो कैपिटल फंड अगर दिया है ना तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन 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 अगर सम में कैपिटल फंड मिसिंग है तो फिर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी ड्रॉ करना पड़ेगा। सो डबल बैलेंस शीट सम हो जाएगा इन दैट केस। अब तक जो बैलेंस शीट आपको देते थे वो आपको ही बनानी पड़ेगी, आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, कंसेप्ट वही है, लॉजिक वही है, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, लेकिन आपको लिखने पड़ेंगे। अब तक आप लिखते नहीं थे, लिखने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ, ये सब में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि कैपिटल फंड दे दिया है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का एकमात्र रीजन क्या हो सकता है? टू फाइंड आउट योर कैपिटल फंड। द कैपिटल फंड इज अवेलेबल, नो नीड टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। आपका सम ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा करंट ईयर। सब जो भी एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट करेंगे लास्ट ईयर करंट ईयर, बट बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं। यार मतलब वो रफ में होगा ना, उसका मार्क्स में होगा। रफ में भी मत बनाओ,
बनाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अगर कैपिटल फंड नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो फेयर में बनाने का, रफ में नहीं भाई, फेयर में। मार्क्स होता है उसका। यस 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 यस, मार्क्स है। लास्ट ईयर तक था वो रफ में बनाने का था, ये साल से आपको फेयर में कर लिया है। दे हैव इंक्लूडेड इन द पोर्शन ओपनिंग बैलेंस शीट। नाउ कमिंग टू ओपनिंग कैश। अब मुझे बताओ ये ओपनिंग कैश बैलेंस कहाँ मिलता था अपने को? लास्ट ईयर बैलेंस शीट। लास्ट ईयर एसेट, तो उधर पेंसिल से लिख लो लास्ट ईयर एसेट, LY एसेट। ओपनिंग बैलेंस जो कैश दिख रहा है 12,000, दैट इज LY एसेट। अभी सब्सक्रिप्शन देखो आपको 3 दिया है, 11, 12, 12, 13, 13, 14। आपको ये पैसे मिले हैं, 11, 12 के मिले हैं 15, 12, 13 के मिले हैं 190 और 13, 14 के मिले हैं 30, विच इज अवर करंट ईयर 12, 13। तो 11, 12 का अभी कैसे मिला? 11, 12 का अभी मिलने का क्या मतलब हुआ? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, तो कहाँ दिखेगा ये? लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट। ओके, और करंट ईयर का कितना मिला है? 1,90,000। करंट ईयर का 190 मिला, दिखा? वो कहाँ जाएगा? ये ईयर के एक्सपेंडिचर में, अरे इनकम में, ये साल के इनकम में। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये 15,000 जो है लास्ट ईयर का रिसीवेबल, क्या ये 190 से माइनस करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। नहीं, अब तक तो करते थे। सर आउटर कॉलम में टोटल दिया है ना। हाँ, हम लोग इनर कॉलम देख रहे हैं, तो 190 के अंदर 15,000 रुपया इंक्लूडेड है कि नहीं है? नहीं है, तो माइनस क्यों कर रहे हो? ईयर वाइज दिया है तुमको सब्सक्रिप्शन। हम लोग माइनस कब करते थे? जब एक ही सब्सक्रिप्शन में सब पड़ा हुआ रहता था। अब तक वैसे ही होता था। अभी यहाँ पे अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन बना के दे दी है कि भैया लास्ट ईयर का 15 मिला है, करंट ईयर का 190 मिला है और नेक्स्ट ईयर का 30 मिला है। तो चलो नेक्स्ट ईयर का देखो, नेक्स्ट ईयर का 13, 14 का देखो कितना मिला है। 30,000 मिला है। वो क्या हुआ? रिसीव्ड इन एडवांस हुआ। अभी ध्यान से सोचना, रिसीव्ड इन एडवांस। यूजुअली वी यूज्ड टू गिव 2 effects, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड लायबिलिटी, राइट? तो इधर लायबिलिटी में दिखाना है, लायबिलिटी में तो दिखाना है रिसीव्ड इन एडवांस है, बट विल यू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन? नो। थिंक, विल यू सब्ट्रैक्ट दिस 1,000 फ्रॉम 1,90,000? मतलब सिर्फ 1,90,000 दिखा के उसका वो सेकंड एंट्री करना है, वो 13, 14 का लायबिलिटी में। 13, 14 का सीधा लायबिलिटी, 11, 12 का लास्ट ईयर एसेट और 190 सीधा इनकम। आपको वो 235 को इग्नोर करना है। अगर आप 235 लेते ना तो आप माइनस भी करते, दोनों प्री रिसीव्ड भी माइनस करते, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग भी माइनस करते। वो सब करने की जरूरत ही नहीं है ना, ईयर वाइज दिया हुआ है। तो 235 को इग्नोर करो, टोटल को इग्नोर मारो। सिंपल क्या करने का, 15,000 लास्ट ईयर का मिला है अभी, तो वो लास्ट ईयर एसेट रहेगा, लास्ट ईयर का रिसीवेबल रहेगा। माइनस नहीं करने का। क्यों माइनस नहीं करने का? वो 190 के अंदर नहीं पड़ा। 190 अलग है, 15,000 अलग है। सिमिलरली 30,000 जो नेक्स्ट ईयर का अभी आया है, उसको भी क्या आप 190 से माइनस करोगे? करंट ईयर के इनकम में से माइनस करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी अलग से दिया हुआ है, 190 के अंदर नहीं पड़ा है। तो वो 30,000 किधर जाएगा? करंट ईयर लायबिलिटी, प्री रिसीव्ड, एक ही इफेक्ट। आर यू गेटिंग इट? तो बेसिकली जब भी आपको ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन दिया होता है तो कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। आपका माइनस करने का झंझट चला गया। यू नीड नॉट सब्ट्रैक्ट एनीथिंग। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग में माइनस मत करना, नेक्स्ट ईयर का प्री रिसीव्ड भी माइनस मत करना। क्यों माइनस नहीं कर रहे हैं? ये लॉजिक बैठ रहा है दिमाग में। व्हाई आर वी नॉट सब्ट्रैक्टिंग ओवर ईयर? ईयरली दिया है, ईयरली दिया है। करंट ईयर में कोई मिलावट नहीं है। 190 is pure income of current year। 2012, 13 की ही इनकम है। देखो मैं ट्यूशंस ले रहा हूं, मैं दिस इज द करंट ईयर 2021। 2021 में मेरे को 2021 की फीस आई 1 लाख रुपीज, लास्ट ईयर की 20,000 आई और नेक्स्ट ईयर की 30,000, 1.5 लाख रुपया मिला मुझे। उसमें 1 लाख करंट ईयर का है, 20,000 लास्ट ईयर का है,
और 30,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो मैं ये साल की इनकम कितनी दिखाऊंगा? 1 लाख दिखाऊंगा। 20,000 क्या 1 लाख में से माइनस करूं? नहीं ना। 30,000 क्या 1 लाख में से माइनस करूं? नहीं ना। तो अब तक क्यों करते थे? अब तक इसलिए करते थे क्योंकि इंफॉर्मेशन थी नहीं, टोटल थी, मिलावट था, सब भेलपूरी था, रोकड़ा एक साथ दिया हुआ था, इसलिए अपने को माइनस करके फिल्टर आउट करना पड़ा। यहाँ पे तो योर वाइज इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यू गेटिंग द लॉजिक? सर मतलब ये साल हम लोग इनकम में सिर्फ 1,90,000 ही दिखाएगा, सिर्फ 1,90,000 ही दिखाएंगे, या फिर करंट ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो कर देंगे, तो वो ऐड कर देंगे। ओके। और सर वो जो 15,000 है उसका क्या इफेक्ट? अगर कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा तो फिर 190। या व्हाट वर यू आस्किंग? सर ये 13-14 वाला अगर एडजस्टमेंट में होता तो क्या करते? अभी तो अब भी किया तुमने, प्रीवियस सम में किया, एडजस्टमेंट में था 13-14 वाला एडजस्टमेंट, लेस फ्रॉम इनकम एंड, तो मतलब टोटल लेते कि 190। अगर ये ऐसा ईयर वाइज देके वापस रिपीट किया तो कुछ नहीं करने का। एक बार कोई आइटम रिसीट पेमेंट में आ गई, उसको वापस एडजस्टमेंट में देना दो ना, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको ये सम में 15,000 अलग दिया है, 190 अलग दिया है, 30,000 अलग दिया है, बराबर है। अभी एडजस्टमेंट में वापस दिया है कि प्री रिसीव्ड 30,000, तो इग्नोर मारने का, ऑलरेडी दिया है ना ऊपर 30,000, वही 30 रिपीट करके देगा। वापस से कोई सेकंड इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है उसकी। सर ये 15,000 का हम लोग कुछ नहीं दिखाएगा? 15,000 का कुछ भी नहीं दिखाएंगे। क्यों? 15,000 कहाँ जाएगा? लास्ट ईयर के एसेट में। आर वी मेकिंग लास्ट ईयर्स बैलेंस शीट? नो, बिकॉज कैपिटल फंड इज अवेलेबल। 235 लेते तो हम लोग जो पहले करते थे वो सब करना पड़ता। हाँ, 235 लेते तो पहले करते थे वैसा करना पड़ेगा। तो 30,000 भी माइनस, और आउटसाइड कॉलम में आंसर आता है वो डायरेक्टली वो लोग ने दे दिया। हाँ, जो आउटसाइड कॉलम में, एक्चुअली आउटसाइड कॉलम वाला आगे भी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, उसको ऐड करके फिर आउटर कॉलम आएगा। अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो आउटसाइड कॉलम वाला 190। बराबर सर 11-12 का कोई इफेक्ट नहीं होगा और 13-14 खाली लायबिलिटी में जाएगा ना? खाली लायबिलिटी में जाएगा, बराबर। मैं फिर भी है ना आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा ये सम में, आगे वाले सम में बनाना ही अपने को। आगे देखो, डोनेशन के बारे में कुछ दिया है, पढ़ो नीचे। डोनेशन रिप्रेजेंट डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। फंड कहाँ दिखाना है? डोनेशन लायबिलिटी, current year liability, all of you got that? Sorry, donation will go to current year liability. Will you add it to capital fund or show it separately? separately. लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में क्या दिया? टू बी कैपिटलाइज्ड, तो क्या करना है? ऐड टू कैपिटल फंड। हॉस्पिटल रिसीट्स आर रेवेन्यू म्हणजे इनकम, बराबर है। कम टू द एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग फॉर 12-13 इज 10,000। 12-13 म्हणजे current year outstanding. What are the two effects of current year's outstanding subscription? Add to subscription assets. Add to subscription and asset, ये किस में ऐड करोगे? 190 में, 15 में कि 30 में? 190। किस में ऐड करोगे ये? 190।